today we will discuss potential due to dipole. Potential due to dipole. This is our topic. Potential due to dipole. So this is our topic. Clear. So consider a dipole plus q charge and minus q charge, and the separation between the dipole, separation between the charge is twice of wave. So there are three cases. First, we have to find potential at axial point. Then we will find potential at equatorial point. Means we will find potential at a point P, this is equatorial one, or we will find a potential at a point Q, which is at a distance r from the center, center of the dipole. So this point is the equatorial one, and this point is the axial point. तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है और यहाँ पर पढ़ना है. एंड थर्ड, इन जनरल it means at any point, मतलब अब ये डाइपोल है और इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे, सॉरी ट्वाइस ऑफ लेंथ है, लेंथ ट्वाइस ऑफ पहले सेंटर से आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल बना के आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है. क्या हुआ कि ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है, थीटा एंगल बना के और आर डिस्टेंस पे पॉइंट है और सेंटर से. क्लियर. सो हमें तीन केसेस करना है. क्लियर. दिस वन एंड देन इन जनरल. क्लियर. और जनरल स्टडी कर लोगे ना तो जनरल क्या हो गया, स्पेशल केस आ जाएगा. तो थीटा जब क्या रखेंगे 0 डिग्री तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्सियल. और थीटा क्या रखेंगे बेटा 90 डिग्री तो क्या मिल जाएगा, इक्वेटोरियल. सो पहले ये करके चेक कर लेंगे क्या है, उसके बाद यहाँ से जनरली कैलकुलेशन फाइंड करके फॉर ए गिवन आर एंड फॉर ए गिवन थीटा है कि नहीं चेक करेंगे. तो थीटा जब 0 रखेंगे तो एक्सियल मिल जाएगा और थीटा 90 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेटोरियल मिल जाएगा. आ रही बात समझ सबको? क्लियर. क्लियर सबको? चलो तो लिखो. फिर पहले अपन करेंगे इक्वेटोरियल, फिर एक्सियल और फिर इन जनरल. लिखो. सो इक्वेटोरियल देख लो पहले. This is your dipole. This is the center at a distance r, that is point P. Here, and we have to find potential at point P, and that will be equal to. हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इसको ऐसे, and we will take their algebraic sum ना. So what? V plus Q. Potential at point P due to plus Q charge will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon this length, and this length is what? Root under L square plus R square ना. Root under L square plus R square. Then potential at point P due to minus charge. Clear. So 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q upon again root under this length, and this length is what? Root under L square plus R. So because whole length is twice of L, so this length is L ना. आ रही बात समझना सबको? So at 1 upon 4 pi epsilon naught L square plus R square. So total potential VP is equal to VQ plus VQ minus, which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon root under L square plus R square plus minus Q upon 4 pi epsilon naught root under L square plus R square is equal to Q upon 4 pi epsilon naught root under L square plus R square minus Q upon
4 pi epsilon naught plus r square equal to 0. Means potential at equatorial point is 0. So potential due to dipole at equatorial point is clear. तो कलिए बेटे, सो ये लिख लो, देन यू स्टडी पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट. गुड, ट्राई करो, लेकिन नहीं ट्राई करो. सो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट so potential at action point, so we'll take a dipole, so there is a plus charge over here, plus q charge over here, minus q charge over here, and there is a point p. क्लियर. पॉइंट p इधर भी हो सकता है बाबू, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं से ले लो, इधर भी लेकर कर लो, इधर भी लेकर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, इधर लोगे तो क्या आएगा, इधर लोगे तो क्या आएगा मैं बता दूंगा. क्लियर हो जाएगा. क्लियर. तो इधर लेकर कर लो पहले. सो दिस इज अ पॉइंट p, and let us assume point p is at a distance r from the center. सभी डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं. क्लियर. So point P is at a distance r from the center of the dipole. So this is the center of dipole, and the length of dipole is twice of L. Clear? Clear. So what? First we will find potential at P due to this plus charge, and then we will find potential at point P due to minus Q charge, and then take their sum, and that will be the total potential at point P. So करो potential at point P due to plus charge. So V plus Q is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. R means this separation ना, and this will be what? This will be कितना होगा ये separation? बोलो. r plus l ना, r plus l, sorry r plus l simply हो जाएगा r plus l. Clear. And potential at point P due to minus q charge, so V minus q is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus q upon this length is r and this is l, so this length will be r minus l ना, so r minus of l. इधर हो गया. So total potential at point P, Vp will be equal to V plus Q plus V minus Q, which is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r plus l minus Q upon 4 pi epsilon naught r माइनस एल. कोई दिक्कत बाबू, कॉमन ले लो. सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना 1 बाई आर प्लस एल माइनस 1 बाई आर माइनस एल. क्लियर. होगा क्या, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम कितना होगा आर प्लस एल एंड आर माइनस एल. ऊपर चला जाएगा तो आर माइनस एल प्लस आर, सॉरी माइनस आर माइनस एल. कोई दिक्कत, इधर करोगे सेपरेट कर दोगे माइनस आ जाएगा. क्लियर. सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस ट्वाइस ऑफ एल, आप से आ गया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. कोई दिक्कत, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. ठीक है बाबू. क्लियर. सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी. दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी. अगर तुम पॉइंट इधर लेते हो Q, जैसे पॉइंट Q ओवर हियर, क्लियर, देन VQ क्या होगा बाबू? VQ विल बी सेम. क्लियर. होगा क्या कि ये पोटेंशियल क्या नेगेटिव है, इसको ऐसा अरेंज करते क्या होगा बाबू? ये हो जाएगा -2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. Clear. So minus 2QL 4 pi epsilon r square. So this is the potential at point P. Clear. So similarly, अब देखो माइनस साइन क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है. अब क्या है कि प्लस चार्ज एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम P ना, तो इसका नेचर क्या होगा? कम होगा. इसका नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा. तो रिजल्टेंट विल बी माइनस ना, रिजल्टेंट विल बी माइनस. सिमिलरली अगर पॉइंट Q है इधर, तब क्या होगा? पोटेंशियल का नेचर प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज इज नियर टू द Q ना. तो सिमिलरली V यानी पोटेंशियल एट Q इज इक्वल टू प्लस 2QL 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर.
क्लियर। तो इधर लोगे तो माइनस, इधर लोगे तो प्लस, तुम्हारी मर्जी, चॉइस इज योर। क्लियर, यू कैन टेक पॉइंट आइदर साइड ऑफ द डाइपोल, इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, इधर लोगे तो माइनस, इधर लोगे तो प्लस। आर ये बात समझ लो, थंब को ऑफ करो। क्लियर हुआ तो थंब को ऑफ करो। क्लियर सबको? क्लियर, तो लिखो इसको डाइपोल मूवमेंट के टर्म में लिख सकते। सो दिस इज योर डाइपोल, प्लस q minus q, and the separation is twice of L. There is a point P at a distance r from the center. So potential at point P, Vp is equal to minus 2qL upon 4 pi epsilon naught r square minus L square. If this is the general case, this is the general case. But if you are taking an assumption is that if your r is very very larger than L, means dipole length is very very smaller than the separation of point from the dipole, means this r is very larger than this length. So क्या, अब बाहर लोग कॉमन तो क्या होगा, माइनस 2qL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉमन ले बचे थे 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो क्लियर। सो L इज वेरी वेरी, r इज वेरी लार्जर देन L ना, यानी कि ये वाला क्या बहुत ज़्यादा है, ये वाला क्या बहुत कम है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, नीचे वाला और ज़्यादा होगा, ये क्या होगा बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो इनका रेशियो क्या होगा, दिस विल गोज टू 0। सो आएगा सर r स्क्वायर क्या कर दिया मैंने ये, हाँ ठीक है क्लियर। तो कितना होगा 2qL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, कोई दिक्कत। और 2qL क्या है, P ना है बाबू, P। क्लियर, तो माइनस ऑफ P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट Q, मतलब इधर वाले पे क्या होगा माइनस, इधर वाले पे क्या हो जाएगा सिंपली प्लस ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q VQ इज इक्वल टू प्लस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो लिखो लिखो। सो कर लिया बाबू, इरेज करूं, बोलो कर लिया ना। सो अब अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट, मतलब एट एनी डिस्टेंस आर एट एनी एंगल थीटा। क्लियर, वो करेंगे। एंड दैट दीस टू आर द स्पेशल केस ऑफ दैट इक्वेशन। सो दिस इज प्लस q, दिस इज माइनस q, एंड दिस इज द ये लेंथ है बाबू ट्वाइस ऑफ L इसका, and this is the center, and that is a point P at a distance r from the center, and this is making an angle theta with this. Clear, with this clear. So इसको क्या करना है यार, इसको माइनस क्यू कर दो, रिजल्ट सेम आएगा लेकिन थोड़ा सही लगेगा, इसको प्लस क्यू कर दो। सो डाइपोल में डायरेक्शन किधर होगा बाबू, डाइपोल में डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा ना, माइनस 2 प्लस, एंड दैट इज इक्वल टू 2qA। क्लियर क्लियर। सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट and this is r। clear। so point P is making an angle theta with the dipole moment ना, dipole moment ये है और ये r है, तो थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर। तो हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, we will find potential due to minus r and then due to plus r and then we will take their sum। क्लियर। तो होगा क्या, सॉल्व करो, तो होगा क्या, मान लो कि ये क्या है, ये r है बाबू, ये r है, कोई दिक्कत, ये r है, तो होगा क्या, या ये r, हाँ ठीक है। आप करो क्वेश्चन करो, तो होगा क्या कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लो कि ये वाला r1 है और ये वाला बाबू r2, ऐसा कुछ है डिस्टेंस ना। ये थोड़ा सा और पॉइंट क्लियर करो ना यार, कोई दिक्कत। मान लो ये r है, ये वाला r डिस्टेंस पे है, और इसको मैंने यहाँ से पॉइंट पे का डिस्टेंस r1 मान लिया, यहाँ से r2 मान लिया, तो v क्या होगा, v प्लस q, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज निकालो पहले। Potential at point P due to minus charge will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon बोलो q upon r1, and potential at point P due to plus q charge is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r2 ना, q upon r2। so total potential at point P Vp is equal to v plus q plus v minus q, this is equal to होगा क्या, सॉरी माइनस चार्ज होगा ना या माइनस क्यू, सो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r1 कर सकते हैं, ये वाला सब्जेक्ट कर दिया उधर,
तो क्या कॉमन ले लो बाबू, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r2 माइनस 1/r1 या q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस 1/r1। क्लियर, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि r1, अब देखो हमें दो इन्फॉर्मेशन है, हमें क्या मालूम है r और थीटा। वी डोंट नो व्हाट इज r1 एंड वी डोंट नो व्हाट इज r2। हमें क्या मालूम वाली r और थीटा। देन वी विल ट्राई टू फाइंड r1 एंड r2। वी विल ट्राई टू फाइंड r1 एंड r2 इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, क्योंकि हमें यही मालूम है, r मालूम है, मतलब यू नो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड वी नो द एंगल थीटा which is the angle between the r and the dipole moment। तो हमें r और थीटा मालूम है, हमें r1 r2 नहीं मालूम है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे अब बाबू, r1 r2 को किसके टर्म में फाइंड करेंगे, r एंड थीटा का फॉर्म फाइंड करेंगे। क्लियर, उसके लिए हम एक रूल यूज करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड द कोसाइन रूल। दैट इज कॉल्ड द कोसाइन रूल। क्लियर, ये कोसाइन रूल यूज करेंगे बाबू, कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल क्या होता है कि अगर मान लो कि ट्रायंगल है बाबू, क्लियर, ये ट्रायंगल है, मान लो ये a है और ये b है, ये c है और ये क्या है थीटा है, तो होगा क्या कि a स्क्वायर इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ थीटा। ये एक रूल होता है, इसको कोसाइन रूल बोलते हैं। क्लियर, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। इधर रुक के मतलब ये कि जो थीटा होगा ना उसके सामने वाला ये ले लो, तो क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा, 2bc cos थीटा। क्लियर, ये कोसाइन रूल था। अगर ये इसको अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है, इसको मान लो थीटा बोलते हो और ये a है और ये b है और c है, तब क्या होगा c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। दिस इज कोसाइन रूल और हम यही रूल करके हम r1 और r2 फाइंड करेंगे। आ रही बात समझ, कोई दिक्कत? सो we don't know r1 and r2, we only know r and theta, so we will try to find r1 and r2 in terms of r and theta। हमें ये और ये पता नहीं है, हमें ये और ये पता है, so we will try to find r1 and r2 in terms of r and theta। so for this we will use a law and that is called the cosine law। और cosine law ये होता है बाबू, cosine law इसको बोलते हैं। क्लियर, इसको बोलते हैं cosine law। ये क्या होता है, मान लो एक ट्रायंगल है, इसका साइड है ABC ट्रायंगल है, ABC साइड लेंथ है, दिस इज साइड A, दिस इज साइड B, दिस इज साइड C एंड दिस इज थीटा। सो थीटा के सामने वाला साइड क्या है A, सो होता है बाबू A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। क्लियर, यानी कि जो थीटा उसके सामने वाला साइड लेना है, इसके सामने क्या है A, सो A स्क्वायर इक्वल टू बचा कितना, दो साइड, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। वैसे अगर इसको लो ABC ट्रायंगल है, ABC साइड है, तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला कितना होगा C, so C square is equal to A square plus B square minus 2AB cos theta। so this law is called the cosine law and we will use this law to find r1 and r2 in terms of r and theta। आ रही बात समझ? आ रही तो बोलो, थंब अप करो, क्लियर हुआ तो। ये क्लियर हुआ cosine law, so we will use this law to find r1 and r2 in terms of r and theta। so जल्दी लिखो, फिर मैं करवाता हूँ। कर लिया बाबू सबने? बोलो, कर लिया सबने? हाँ, गुड। सो दिस इज कोसाइन लॉ, सो वी यूज दैट फॉर्मूला टू फाइंड द पोटेंशियल। तो देखो बाबू, ये अपना डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू इधर ले लो और प्लस क्यू इधर ले लो। डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ एल, ये सेंटर है बाबू, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, तो बस इसको इधर बनाना है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे पॉइंट पी है। क्लियर, और हमने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। और ये क्या है बाबू, r1 है और ये r2 है, यही है ना कि ये r2 है। क्या लिया था, किसको क्या लिया था बताओ? इसको r2 इसको r1 लिया था ना? सो कोसाइन का क्या है बाबू?
ये है ए, ये बी, ये सी, एंड इफ दिस इज थीटा देन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ थीटा। सो यूज फॉर्मूला। सो व्हाट इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में क्या है, इफ दिस इज थीटा दिस वन विल बी 180 माइनस ऑफ थीटा ना। अब इस ट्रायंगल में अप्लाई करो कोसाइन लॉ, तो कितना होगा r1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2lr cos ऑफ थीटा, क्योंकि ये लेंथ l है और ये क्या है r है और ये r1 है, तो इसके सामने वाला क्या है r1 है ना, तो r1 स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2lr cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल कितना है 180 माइनस थीटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस हो जाएगा lr cos ऑफ थीटा। क्यों, क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है ना, होता है कि नहीं बेटे। थर्ड में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, cos माइनस साइन में होता है कि नहीं, क्लियर। सो ये हो गया तो प्लस हो जाएगा, सो r1 स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2lr cos ऑफ थीटा। सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल से एक हो गया, ये हो गया बाबू r1 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको ध्यान रखना है, क्लियर। अब दूसरा क्या है r2, अब इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, सो दिस इज थीटा, सो दिस इज r2, so r2 स्क्वायर इक्वल टू अगेन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2lr cos ऑफ थीटा, क्लियर। ये हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो अपन क्या करेंगे, अपन बाबू अब वो करेंगे, क्या बोल रहा है, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करो। पहले हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल अपना क्या है, v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। हमें r2 और r1 चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या निकालेंगे हम, r1 निकालेंगे और यहाँ से r2 निकालेंगे। इसको सॉल्व करो, पहला वाला इक्वेशन लो, सो r1 स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2lr cos ऑफ थीटा। सो व्हाट होएगा क्या बाबू, अगर r1 स्क्वायर इक्वल टू, अगर r कॉमन लूं मैं, r स्क्वायर कॉमन लूं तो बचेगा कितना, बोलो l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2lr cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही बचेगा ना। तो सॉल्व करो, कितना होगा r स्क्वायर एंड l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r। अब देखो, अगर ये जंक्शन I am taking, if I am taking this assumption your l is very very less than r, अगर ये जंक्शन ले रहा मैं, तब क्या हो जाएगा बाबू, दिस गाय गोज टू 0 ना, दिस गाय गोज टू 0, क्लियर है। अगर ये जंक्शन होगा तो क्या होगा, ये 0 की इक्वल हो जाएगा ना, आ रही बात समझ। देन अब इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि l है यहाँ r है और यहाँ का l स्क्वायर और r, इन सबका कंपैरिजन में क्या होगा, दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉलर ना, सो दिस कैन बी नेगलेक्टेड। सो व्हाट r1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या होगा यहाँ से बाबू, अब देख लो, इसको कर दो, r1 क्या होगा, r1 इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r, यार है देखना 1/2 आएगा नहीं, ये पूरे पूरे पर 1/2 यार है यहाँ तक, ठीक है, ये आएगा ना। तो अब क्या होगा बाबू, इसको खोल दो, तो ये क्या होगा r1 इक्वल टू r और ये होगा 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r और टू दी पावर 1/2, क्योंकि ये बाहर ले गए। ये बात क्लियर हुई, यहाँ तक सबको क्लियर हुई, बोलो बोलो क्लियर। सिंपली यू कैन आल्सो प्ले दिस इक्वेशन, क्लियर। इस इक्वेशन से कर सकते हो, योर r2 इक्वल टू r2 स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rl cos ऑफ थीटा, अगेन r स्क्वायर कॉमन लो बेटा, तो बचेगा कितना, l स्क्वायर प्लस अपन r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r, बचेगा कि नहीं। अगेन इफ यू आर टेकिंग दिस assumption, so this guy goes to 0, so r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r। तो होगा क्या यहाँ से, फिर r2 इक्वल टू r 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r टू दी पावर, यहाँ से इसको लिख लो, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ये क्लियर। तो यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं, सो r2 इक्वल टू r
एंड 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r और इसका 1 अपॉन 2। कोई दिक्कत? सो दिस इज r1 एंड दिस इज r2, दे आर सेम, ओनली यहाँ क्या है माइनस साइन का डिफरेंस है, क्लियर? यहाँ माइनस हो जाएगा और रिजल्ट क्या है सेम। तो ये होगा r2 और r1 मिल गया हमको, क्लियर? लेकिन हमको क्या चाहिए 1 अपॉन r2 1 अपॉन r1, तो उसको और सॉल्व करेंगे, क्लियर? लिखो फिर मैं करवा रहा हूं, बोलो बाकी के बच्चे। श्रुति, शिवानी, अंकित सबने कर लिया ना? गुड, Yes, sir. good. So now we play with this equation r1 r2 and r1, because हमें क्या चाहिए बाबू r2 r1 चाहिए, 1 अपॉन r2 1 अपॉन r1 चाहिए, लेकिन यहाँ r1 और r2 मालूम है, हम कुछ नहीं कर उसको सीधे इन्वर्ट करते हैं, क्लियर? इन्वर्ट करते हैं, तो इन्वर्ट कर रहा हूँ। बुक में जाकर पढ़ोगे तो अजीब सा रायता फैला रखा है, ठीक है? अच्छा ये बताओ बुक पढ़ रहे हो कि नहीं सब? कौन सा बुक में ये सब, कौन सी बुक में तुमको मिल रहा है कहीं बुक में ये सब? हाँ बोलो। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो बाबू देखो हमें v इक्वल क्या चाहिए, 1 अपॉन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, बट वी नो r2 इक्वल टू क्या है बाबू, r1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r टू द पावर हाफ, एंड r1 इक्वल टू r1 प्लस 2l cos थीटा r टू द पावर हाफ। हमको चाहिए 1 अपॉन r 1 अपॉन r, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे 1 अपॉन r2 इक्वल टू 1 अपॉन r 1 माइनस 2l cos थीटा r टू द पावर माइनस 1/2। कोई परेशानी है? उल्टा करेंगे फिर ऊपर लेके चले जाएंगे, क्लियर? यहाँ से हो जाएगा ये, तो होगा क्या 1 अपॉन r और ये होगा 1, और देखो ये एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, यही है ना, प्लस डॉट डॉट सुपर एक्सपेंशन, तो 1/r1 और माइनस माइनस प्लस 2l cos थीटा अपॉन 2r, क्योंकि 1 अपॉन 2 आ जाएगा और l कॉस्ट है ना, प्लस और हायर ऑर्डर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर का मतलब l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, तो नेग्लेक्ट कर देंगे हायर ऑर्डर टर्म को, क्लियर? क्लियर? तो बात इसको खोलोगे तो क्या होगा ये बाबू, ये हो जाएगा 1 अपॉन r 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन 2r, तो कटेगा तो क्या होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 1 अपॉन r और ये हो जाएगा 1 प्लस l cos थीटा अपॉन r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आ रही है समझ? बोलो, क्लियर? उसके बाद सिमिलरली क्या हो जाएगा बाबू, सिमिलरली क्या कर देंगे हम इसको, सिमिलरली इसके साथ भी हो जाएगा, कर लेते हैं। सिमिलरली r1 क्या है बाबू, ये r1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r टू द पावर माइनस 1/2, तब क्या होगा 1/r1 क्या होगा, क्या कर दिया मैंने, सॉरी r1 है ये खाली, ये प्लस 1/2, ये क्या प्लस 1/2 है ना, ये देख रहे हो, तो अब उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन r क्या होगा, r 1 अपॉन r, ये हो जाएगा 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r, और यहाँ होगा माइनस 1 अपॉन 2, तब फिर वही बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी 1 अपॉन r1 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन r, और 1 माइनस हो जाएगा 2l cos थीटा अपॉन 2r प्लस 0, क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म को क्या करेंगे, रिलेक्ट कर देंगे, क्लियर? तो बचेगा कितना 1 अपॉन r और ये हो जाएगा 1 माइनस 2l cos थीटा, सॉरी अब सिंपली r, ये बच जाएगा। सो दिस इज 1 अपॉन r1 एंड दिस इज 1 अपॉन r2, इसमें रखेंगे, ये 1 अपॉन r2 का ये वैल्यू है, 1 अपॉन r1 का वैल्यू है, इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा देखेंगे। चलो करो इसको, लिखो, समझ आई ये चीजें कैसे होगा कैलकुलेशन, बोलो
ये कैलकुलेशन बाइनरी इजी है, ये बाइनरी एक्सपेंशन है। क्लियर, जल्दी करो जल्दी करो। कर लिया बाबू? क्लियर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जल्दी करते हैं, इसको कंप्लीट करना है मुझे आज, मैं कल के लिए सुनूंगा। क्लियर, जल्दी करो। सो व्हाट इजी, अब तो आ गया अपने टाइम के हिसाब से हो गया। सो होगा क्या बाबू, ये है, अब अपन R1 R2 का वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर, देखो ये है बाबू, अब 1/R1 क्या है बाबू, 1/R2 कितना है बताओ, 1/R2 इधर था 1/R 1 + L cos थीटा अपॉन R, और 1/R1 कितना था बेटे, 1/R 1 - L cos थीटा अपॉन। देखो नेचर की सिमेट्री को देख रहे हो कितना सीधा सीधा आया, और इतना करने के बाद एकदम से सही और सुंदर टाइप का रिजल्ट आएगा जो कि तुम्हें अच्छा लगेगा देख के उसको, है ना। आई विल बी हैप्पी। बाकी बुक्स में भी कर रखा है, तुम इसी बार में पढ़ो कोई और बुक, इतना गलत तरीके से कर रखा है वो तो और हालत खराब करने वाला है। दिस इज द वेरी इजी वन, कोसाइन लो याद है, बाकी मैथमेटिक्स से कर लो हो जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है, सबसे इजी रूल होता है। और भी रूल्स है लेकिन वो हालत खराब कर देंगे तुम्हारा। ठीक है, इतना सारा एग्जाम्पल्स ले रखे उसको करने के लिए कि क्या बताऊं, तो तुम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इजीएस्ट यही है। ठीक है, तुम एक्सेल या कोई और बुक देखना, उसमें वो क्या करेगा कि अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फिर अलग अलग ट्रायंगल किया, अलग लेवल का है उसका, एंड दिस इज द नाइस वन, है कि नहीं। सो Q/4πε0, और बाबू ये होगा 1/R। ठीक है, 1 अभी ये वो कर देते हैं ना अपन, हाँ 1/R 1 + L cos थीटा अपॉन R। क्लियर, इसको ऐसे करो ब्रैकेट में। क्लियर, और माइनस, और फिर 1/R, और ये 1 - L cos थीटा अपॉन R। कोई दिक्कत? अब अपन क्या करेंगे, 1/R दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। क्लियर, तो कॉमन तो कितना होगा, Q/4πε0 R, बचेगा कितना 1 + L cos थीटा अपॉन R माइनस 1 + L cos थीटा अपॉन R। कोई दिक्कत? माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत? तो बचेगा कितना, अभी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो बचेगा और V = और कोई मार्कर नहीं, मतलब ये तो खत्म हो गया, 2 मार्कर। सो V = Q/4πε0 R, बचेगा कितना बाबू, 2L cos थीटा अपॉन R। यही बचेगा ना। अब होगा क्या, देखो कितना सुंदर आ गया। सो व्हाट 2QL cos थीटा अपॉन 4πε0 R² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। सो व्हाट दिस इज इक्वल टू 2QL को लिख सकते हैं P cos थीटा अपॉन 4πε0 R²। कोई दिक्कत? क्लियर, अब बात समझ आई बाबू। इसको लिख सकते हैं V = P, हाँ ना यही हो गया, P cos थीटा अपॉन 4πε0 R²। So this is the potential at any point at any angle theta। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो होगा क्या बाबू, अगर if you are talking about वेक्टर वेक्टर फॉर्म है तो ये -Q है बेटे और ये +Q है। क्लियर, और सेपरेशन है बाबू ट्वाइस ऑफ L। क्लियर, तो P किधर है बाबू, P इधर है ना, और यहाँ सेंटर है और यहाँ से R डिस्टेंस पे, तो इसको R वेक्टर बोलूं, और ये पॉइंट P है, ये थीटा है, इसको लिख सकते हैं कि V = P वेक्टर डॉट R अपॉन 4πε0 R²। कोई ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज इसको खोलोगे तो क्या होगा, R है, तो क्या R क्या होगा, ये होगा P cos थीटा, और R का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/4πε0 R², यही होगा ना। क्लियर, अब देखो सो दिस इज द यानी V = P डॉट R 4πε0 R², ये वेक्टर टर्म में हो गई है। क्लियर, ये वेक्टर टर्म में हो गया। आज ये बात समझना ही है, P का डायरेक्शन ये। अब देखो वहां से स्पेशल केस ले लो, when थीटा = 0, तब क्या होगा, थीटा 0 होगा तो पॉइंट कहां आएगा, इधर आएगा ना, या 180 डिग्री। थीटा 0 लो या 180 डिग्री लो, क्या होगा, अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। B क्या होगा, B क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, और 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, जो कि हमने देखा था। अरे जब थीटा 0 लोगे तो क्या होगा, V प्लस, और थीटा 180 डिग्री लोगे तो क्या होगा, V माइनस। तो हमने देखा था कि इधर पे क्या था, प्लस, इधर पे माइनस, यहाँ से होगा। और थीटा आ रही है बात समझ की नहीं, और थीटा 90 डिग्री लोगे तो क्या था बाबू, V क्या था, 0 था, तो 90 रखो ना, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। ये क्लियर हुई चीज है, बात बोलो, ये सब बाकी क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर होगा सर, थंब अप करोगे क्लियर हुआ तो
सब बच्चे सब, सो दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी। अब देखो हमने ये देखना है, क्लियर, कंपेयर करना है, 5 मिनट हमें कंपेयर करा तो फिर बोर्ड लिख लेना। कंपेयर ये करना कि इफ देयर इज अ पॉइंट चार्ज q and there is a point p and the separation r, so electric potential is equal to r, potential क्या है 1/4 pi epsilon naught q upon r, क्लियर। लेकिन if there is a dipole, there is a plus charge and there is a minus charge and separation twice of it, तो potential क्या है ड्यू टू डाइपोल बाबू, ये है p cos थीटा अपॉन 4 pi epsilon naught r स्क्वायर, यही है ना, यानी कि r स्क्वायर डिपेंडेंस है ना, मींस फॉर पॉइंट, फॉर यहां से लिख सकते हैं फॉर पॉइंट चार्ज v e डाइपोल 1 upon r and for डाइपोल v डाइपोल 1 upon r स्क्वायर, ये डिपेंडेंस होता है, यानी कि पॉइंट चार्ज होगा तो 1 upon r पे डिपेंड करेगा और डाइपोल होगा तो 1 upon r स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो अगर ग्राफ प्लॉट करोगे बेटे, अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तुम, ग्राफ प्लॉट क्या होगा, अगर सेम ग्राफ पे मान लो कि v है और ये r है और डाइपोल ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना, और क्या होगा इधर वाला क्या होगा, इधर वाला क्या होगा, एक r स्क्वायर एक r पे, डाइपोल का और पॉइंट का ग्राफ कौन होगा, कौन बताएगा, डाइपोल और पॉइंट का ग्राफ बोलो। अरे यार ये छोटा बड़ा ये ग्राफ कौन बताएगा, ये कराया है मैंने ये ग्राफ, कौन डाइपोल का होगा और कौन पॉइंट चार्ज का ग्राफ होगा। अरे ये एकदम एक क्लासरूम में पूरा कराया था, क्लास में कुछ याद नहीं है लोग, ये होमवर्क है, कौन किसका ग्राफ होगा करके बताओगे, क्लियर। ये v और ये r है, तो अगर ये डाइपोल का होगा ये पॉइंट का होगा, क्लियर हुआ चीज है। ये एक्सप्लेन कर रखा मैंने पूरे लेक्चर में, पूरा क्या था, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डाइपोल और पॉइंट पढ़ा रहा था तो ये ग्राफ क्लियर किया था। आर ये बात समझ तो थंब अप करो, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये ग्राफ कौन सा किसका होकर के बताओ, और थोड़ा सा चीजों को ना ध्यान रखा करो, ठीक है। मुझे पेपर नहीं देना, तुमने पेपर देना है, दो भूल जाते हैं। उधर वाला उसका होगा, डाइपोल का होगा, ये वाला डाइपोल का होगा, हाँ। तो नीतीश के हिसाब से ये डाइपोल का होगा और ये वाला उसका, और ये पॉइंट का होगा, सही है ये, बोलो ये सही है, क्लियर। हाँ क्योंकि आर क्यूब है ना, तो जितना स्मॉल वैल्यू होगा तो क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा वो होगा ना, तो ये ठीक है। इधर क्या होगा, नीचे ये पलट जाएगा, कोई दिक्कत, तो ये ग्राफ है कर लेंगे। ये ग्राफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ा था तो पूरा क्लियर से समझा था, क्लियर बाबू। सो ये सब चीजें, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो, सबको क्लियर है ये सारा मैथमेटिक्स, बोलो क्लियर। सो इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss some questions and then we will study equipotential surface, clear। so ये हो गया, बाइंड अप कर रहे हैं, लिख लो।